Hello students, I Zahir Abbas. Welcome to my YouTube channel Feel Real Chemistry with Jay Sir. Today we will study the topic chemical reactions of alcohol. Chemical reactions of alcohol. In earlier classes we studied nomenclature, introduction, method of synthesis and physical properties of alcohols. In this class we will study chemical reactions of alcohols. Alcohol shows mainly three types of chemical reaction. Three types of chemical reactions. Alcohols can be represented as ROH. First reaction in which bond breaking or dissociation takes place between hydrogen and oxygen. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. फर्स्ट रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड डिसोसिएट होता है, ब्रेक होता है. सेकेंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल इन विच बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस बिटवीन कार्बन एंड OH. कार्बन एंड OH. वी नो दैट इन एल्किल ग्रुप कार्बन इज प्रेजेंट, so bond breaking takes place from here. And third type of chemical reaction is chemical reaction shows by complete alcohol molecules. Complete alcohol molecules. So there are three types of chemical reactions of alcohols. First reaction is reaction in which OH bond breaking takes place. First of all, OH bond breaking takes place. वो केमिकल रिएक्शन अपन को स्टडी करनी है. इस रिएक्शन में सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, जो इसी चैप्टर के आगे फिनोल वाले टॉपिक में भी काम में लेंगे और चैप्टर नंबर 12 उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पॉइंट काम में लेंगे. उसके लिए टॉपिक लिखा है अपन ने एसिडिक नेचर. इट इज ऑल्सो नोन एज एसिडिक स्ट्रेंथ और एसिडिटी. एसिडिक नेचर. एसिडिक नेचर का मतलब है एसिड से. वी नो दैट दोज स्पीसीज विच कैन रिलीज H+ आयंस आर नोन एज एसिड्स. तो एसिड होने के लिए H+ आयन का रिलीज करना जरूरी है. ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजिंग कैपेसिटी ऑफ H+, acids have two types: strong acid and weak acid. Those acids which can easily release H+ ion are strong acids, or we can say that the acidic strength of these acids are high. And those acids which can release H+ ion slowly, then the acidic strength of these acids are very less. Alcohols are acidic in nature. Alcohols are acidic in nature. So we can say that alcohols can release H+ ions. But alcohol is a weak acid. But alcohol is a weak acid. The acidic strength of alcohol is very less than carboxylic acid. Alcohol एसिडिक नेचर शो करता है, इसका मतलब वो H+ आयन रिलीज करेगा, लेकिन इस एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये एल्कोहल है वो H+ आयन बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज करता है, इजीली रिलीज नहीं करता है. तो फर्स्ट रिएक्शन अपन ऐसी रिएक्शन देखेंगे जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा. एसिडिक जो स्ट्रेंथ है उसके लिए अपने पॉइंट लिखा है एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो नोन एज एसिडिटी.
तो एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट. माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट मींस द टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स. टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मतलब प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट दोज ग्रुप्स which have donor nature of electron, or we can say that donor of electrons show plus I effect, and electron withdrawing or attracting groups show minus I effect. Those species, those groups which can attract or withdrawing the electrons are minus I affected groups. जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं, गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं. माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले जो एग्जांपल हैं वो लिख रहे हैं अपन. माइनस आई इफेक्ट NO2, CWH, CN, हेलोजन्स. Similarly, plus I effect example all alkyl groups. All alkyl groups. Alkyl groups show plus I effect. So we can say that alkyl groups can release electrons. The plus I effect of alkyl group is directly proportional to the number of carbons or size of alkyl group. कहने का मतलब है कि सभी एल्किल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे. इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे. मेथिल है वो भी प्लस आई इफेक्ट शो करता है, एथिल है वो भी करेगा, प्रोपिल है वो भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा. तो जैसे जैसे कार्बन के नंबर इंक्रीज होते जाते हैं या एल्किल ग्रुप्स की साइज इंक्रीज होती जाती है, उसका प्लस आई इफेक्ट क्या होता जाता है, इंक्रीज हो जाता है. नोट करेंगे आप ये बात. एसिडिक स्ट्रेंथ को इस टाइप से इस फॉर्मूले से अपन समझ सकते हैं. फॉर्मूला लिखा है एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई. कहने का मतलब माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, और प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो एसिडिटी बहुत कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसको अपन इस टाइप से समझ सकते हैं. ROH एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब H प्लस रिलीज करने की कैपेसिटी. H प्लस इजीली रिलीज हो जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. H प्लस आयन इजीली रिलीज नहीं होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी कम होगी. तो यहाँ ये मान लो कि एल्कोहल में ये एल्किल ग्रुप है, यहाँ तो और कोई भी ग्रुप हो सकता है. एल्किल ग्रुप अगर होगा तब तो कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा. मान लो यहाँ पर कोई ग्रुप प्रेजेंट है अपना ग्रुप, तो वो ग्रुप दो टाइप का नेचर शो कर सकता है. या तो वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा या वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा. सपोज दैट ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप. ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप. कहने का मतलब है ये ग्रुप है, अगर वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है मतलब कैसा इफेक्ट शो करता है, माइनस इफेक्ट शो करता है. तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये ग्रुप है वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी हो जाएगी. इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी, उस डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए ये ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन किससे गेन करेगा, हाइड्रोजन से. और हाइड्रोजन से गेन करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा और H प्लस आयन क्या हो जाएगा, इजीली रिलीज हो जाएगा. तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप ऑक्सीजन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. टू कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉन्स, टू कंप्लीट देयर डेफिशिएंसी, it can easily release H plus ion. So we can say that minus I effect is directly proportional to acidity. If group is electron donor, अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर है मतलब वो कैसा इफेक्ट शो करता है, प्लस इफेक्ट शो करता है. इसका मतलब है कि वो ग्रुप ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं और ये ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इस ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर देगा. अब और डोनेट कर देगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो फिर ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा क्यों, और इलेक्ट्रॉन नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी. इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो क्या रिलीज नहीं होगा, H प्लस आयन रिलीज
नहीं होंगे या कम होंगे। सो वी कैन से दैट प्लस आई इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, एसिडिटी कम होगी, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल CH3OH and CH3CH2OH, methyl alcohol and ethyl alcohol. We know that alcohols are weak acid. वीक एसिड, दोनों ही एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक नेचर क्या करते हैं, शो करते हैं। दोनों में से एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? तो मेथिल एल्कोहल जो है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, मोर एसिडिक है। मोर एसिडिक क्यों है? इसमें जो अपना मेथिल ग्रुप है वो प्लस इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ जो एथिल है वो भी एक एथिल ग्रुप है, वो भी कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई। अभी अपन क्या बता के गए थे कि ग्रुप जितना बड़ा होगा प्लस इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा, वो प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी कम होगी। बिकॉज वी नो दैट acidic inversely proportional to plus effect. So we can say that methyl alcohol is more acidic in compared to ethyl alcohol due to less plus I effect. ऐसा कैसा है एग्जांपल सेम टू सेम अपना इसी चैप्टर में आगे फिनोल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, उससे भी क्वेश्चन होता है। एग्जांपल देखेंगे आप, फिनोल 4 नाइट्रोफिनोल 4 मेथिल फिनोल, ये 3 एग्जांपल्स अपने सामने हैं, लेबल्ड A, B एंड C। क्वेश्चन अपना ऐसा होगा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उसमें आपको प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहां प्लस आई इफेक्ट है और कहां क्या है, माइनस आई इफेक्ट है। फिनोल 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 तो सब में सेम है। यहाँ NO2 है, कैसा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई लिखा अपना। यहाँ मैथिल है, एल्किल ग्रुप, कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। जब इतना पता चल जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं, वी नो दैट एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। तो सबसे कम किसकी होगी, प्लस आई इफेक्ट वाले की, जो सी है। सबसे ज्यादा किसकी होगी, माइनस आई इफेक्ट वाले की। इंटरमीडिएट फिनोल की, उसमें नए प्लस आई है, नए क्या है, माइनस आई। तो इसलिए नए वाला माइनस आई से तो कम होगा और प्लस आई से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे अपन, इसका आंसर इस टाइप से लिखेंगे, सबसे लेस एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी, सी ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, फिर ए और सबसे ज्यादा बी ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए आप ये साइन लगा देंगे, ये अपना आंसर इसका होगा। थर्ड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो अपना क्वेश्चन होता है, आया और एक बार क्वेश्चन ये है कि एसिडिक एसिड CH3COOH एंड क्लोरोएसिटिक एसिड ClCH2COOH, थर्ड टाइप का अपना एग्जांपल मान लें, इससे क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है, क्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक इन कंपेयर टू एसिटिक एसिड। तो इसका आंसर क्या होगा, इन एसिटिक एसिड CH3 methyl group is present, methyl group show plus I effect, but in acid chloroacetic acid chlorine is present और chlorine show minus I effect because all halogens में chlorine आता है, chlorine fluorine bromine iodine। So we know that chlorine show minus I effect. We also know that the acidic strength or acidity is directly proportional to minus I effect. So we can say that the acidic strength of chloroacetic acid is greater than acetic acid due to the minus I effect of chlorine. इस टाइप से ये एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है। ये तीनों ही पॉइंट में काम आता है, एल्कोहल में भी है, फिनोल है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। कैसे भी क्वेश्चन हो सकता है। आपको मेनली क्या करना है, माइनस आई प्लस आई इफेक्ट देखना है, किसका माइनस आई किसका प्लस आई है, किसका कम है किसका ज्यादा है। उस हिसाब से माइनस आई ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, और अगर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक नेचर का एग्जाम्पल देखते हैं।
एसिडिक नेचर शो करने के लिए आप किसी भी कंपाउंड की कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई एल्कोहल है, कोई फिनोल है, उसकी रिएक्शन करवाएंगे आप, रिएक्शन विद मेटल एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। जब आप कंपाउंड की रिएक्शन मेटल और मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो वो रिएक्शन उस कंपाउंड की एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करती है। कोई क्वेश्चन अगर बाय चांस ऐसा आ जाता है कि एक्सप्लेन द या राइट द केमिकल रिएक्शन विच रिप्रेजेंट एसिडिक स्ट्रेंथ और एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल, देन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद मेटल एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। First of all, ethanol is the example of alcohol, react with sodium metal. Second, aluminium. Third, metal hydroxide, example is NaOH. इसमें आपको क्या करना है, जब आप मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्कोहल का जो OH ग्रुप है, OH, उसके H को रिमूव करते हुए आपको उसकी जगह Na है तो Na, Al है तो Al और Na है तो Na क्या करेंगे, लगा देंगे, रिप्लेस कर देंगे। मतलब हाइड्रोजन ऑफ OH ग्रुप रिप्लेस्ड बाय मेटल इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। सो द प्रोडक्ट इज CH3 CH2ONa प्लस हाफ H2 गैस। यहाँ H की जगह Na लगा दिया है, एक H रिलीज हुआ है, अकेला H स्टेबल नहीं होता है, किस फॉर्म में रहेगा, H2 की फॉर्म में, और H2 की फॉर्म में रहेगा तो उसको बैलेंस करने के लिए लगाया अपन ने हाफ H2। दूसरी कंडीशन आपके सामने ये हो सकती है कि आप इसके मॉलिक्यूल ले ले 2, Na भी कितने 2, प्रोडक्ट भी 2 बनेंगे, तब कंप्लीट क्या रिलीज हो जाएगी, H2 गैस। नेम ऑफ प्रोडक्ट इज सोडियम एथोक्साइड। It is the example of sodium alkoxide, RONA। एल्कोहल होता है ROH, रिएक्शन कराएंगे बेट, तो ये बात करेंगे RONA मतलब रोना, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोहल से एल्किल प्लस ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनाए, सोडियम एल्कोक्साइड नाम है। यहाँ एथिल है तो नाम हो गया सोडियम एथोक्साइड। Similarly, when alcohol react with aluminium, then hydrogen also replaced by aluminium and formed product is CH3 CH2OAl. We know that at aluminium +3 charge is present. So balance that compound 3 molecules are used, CH3 CH2O का whole twice Al। यहाँ आप देखेंगे कि Na तो अपन एक ही लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि Na पे तो होता ही +1 और ऑक्सीजन पे माइनस आया होता है। H प्लस रिलीज होने के बाद में इस पे H प्लस OH माइनस था तो उसमें एक Na आपने ऐड करवाया। लेकिन यहाँ एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, और +3 चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपको कितने ग्रुप लेने पड़े, यहाँ पे कितने कंपाउंड लेने पड़े, 3 लेने पड़े हैं, 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़े, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 आ जाएंगे। अब हाइड्रोजन भी कितने रिलीज हुए हैं, 3, तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, 3/2 H2। नेक्स्ट में यहाँ वही H की जगह Na लगाना है, तो प्रोडक्ट बनेगा अपना CH3 CH2 CH2ONa प्लस हाफ H2 प्लस H2O H इसका H और Na इसका OH, H2 रिलीज होगा। तो अपने क्या बताया कि मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो H2 गैस रिलीज होगी, कितनी भी हो सकती है, और मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ करेगा तो क्या रिलीज होगा, H2 रिलीज होगा। ये एल्कोहल है या कोई भी कंपाउंड है, उनकी एसिडिक नेचर को, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। मैंने अपने क्या देखा, अगर आप मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्कोहल कहीं पर भी लगा हुआ है, उसका H हटाकर Na जोड़ना है, अगर A है तो L जोड़ना है। L के लिए आपको मॉलिक्यूल कितने लेने पड़ेंगे, 3 लेने पड़ेंगे। सेकंड है रिएक्शन विद RMGX। अपन कौन सी केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, अभी जो एग्जांपल पढ़े उसमें ऐसे ही थे। रिएक्शन विद RMGX, RMGX के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, तो लिखा है कि when alcohol react with RMGX Grignard reagent then alkanes are formed। तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। कैसे बनेंगे देखते हैं, CH3OH methanol react with CH3 CH2MgBr, it is the example of Grignard reagent। We know that in Grignard reagent bond breaking takes place by this manner। In alcohols
we study the chemical reaction in which bond breaking takes place between O and H, then H plus and O minus. H plus को आप ऐड करवा देंगे इस माइनस के साथ, तो प्रोडक्ट बनेगा अपना CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस बाई प्रोडक्ट और रिमेनिंग पार्ट MgBr and OCH3 is negative part attached with magnesium OCH3. So the product is CH3 means ethane. Ethane is the example of alkane. कहने का मतलब ये है कि एल्कोहल की रिएक्शन विनाइल एजेंट के साथ करवाएंगे तो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। जितने कार्बन विनाइल एजेंट में होंगे उतने ही कार्बन का एल्केन फॉर्म होगा। अगर यहाँ ऐसे था तो एथेन बन गया, मेथिल होता तो मेथेन बनता, प्रोपिल होता तो प्रोपेन बनता। थर्ड है रिएक्शन विद मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन विद मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मींस 1 COH group. When alcohols react with monocarboxylic acids, then it gives ester. Ester we study in earlier classes are C double bond OR. For example, ethyl acetate is the example of ester. So when alcohols react with monocarboxylic acid, then it gives ester. This reaction is known as esterification. This reaction is known as esterification reaction. Formation of ester is known as esterification reaction. कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो एस्टर का फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन का नाम होता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन OH group of carboxylic acid and H of alcohol eliminated or connected with each other to release H2O minus H2O. OH and H. Remaining part added to each other CH3 C double bond. CO को अपन लिखा है C double bond को। फिर कौन अटैच होगा? ऑक्सीजन, क्योंकि बॉन्ड O और H के बीच का ब्रेक हुआ तो O, बाकी रिमेनिंग पार्ट CH2 and CH3 CH2 CH3. It is ethyl acetate. It is ethyl acetate. The reactivity order of alcohols towards esterification reaction is 3 degree, 2 degree, 1 degree and methyl alcohol. एस्टरिफिकेशन रिएक्शन तो सारे ही एल्कोहल्स को करेंगे, लेकिन फास्टली कौन करेगा? मेथिल एल्कोहल। सबसे स्लो कौन करेगा? 3 डिग्री। उसका रीजन क्या है? व्हेन size of alkyl group or number of alkyl groups increase in alcohol, then the rate of esterification reaction decreases. जब alkyl group की साइज और उसके नंबर इंक्रीज होते हैं तो esterification reaction की जो रेट है वो डिक्रीज हो जाती है। We know that in 3 degree alkyl group, in 3 degree alkyl alcohol, 3 alkyls are attached to carbon. Or bulky alkyl group is present, so it is less reactive towards esterification reaction. Fourth type of reaction with acid chloride and anhydride. Acid chloride means acyl chloride, also known as acid chloride. For example, CH3 C double bond O Cl react with alcohol CH3 CH2 OH. So when acid chloride react with alcohol, then it forms ester. We know that acid chloride is the derivative of carboxylic acid, so reaction takes place in that manner. In this manner, carbon bear positive charge, chlorine bear negative charge. Here oxygen negative, hydrogen positive attached to each other, then the product is CH3 C double bond O CH2 CH3 plus HCl, ethyl acetate प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ CH3 C double bond O, इसमें कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन अटैच करवा देंगे CH3 C double bond O, आगे पार्ट सेम है CH2 CH3। एनहाइड्राइड का फॉर्मूला याद कर लेंगे CH3 C double bond O O C double bond O CH3 react with alcohol. It is the anhydride. Name of this hydride is acetic
एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है. It is also derivative of carboxylic acid. So reaction takes place in this manner. Carbon bear positive charge and oxygen bear negative charge. Here similarly hydrogen positive and oxygen negative. A positively charged particles, a positively charged molecules connected to each other. Then the product gives CH3 C double bond O. पॉजिटिव चार्ज के साथ नेगेटिव आपको अटैच करवाना है तो O ऐड हो जाएगा, CH2 CH3 उसके आगे का पार्ट है सेम. इधर रिमेनिंग पार्ट CH3 C डब्ल्यू O माइनस H पॉजिटिव है तो जोड़ देंगे CH3 COOH. एस्टर का फॉर्मेशन होगा. एथिल एसीटेट इसका नाम है, एथिल एसीटेट. तो एसिड क्लोराइड हो चाहे एनहाइड्राइड हो चाहे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो, जब वो एल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं. लेकिन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कौन सी होती है? रिएक्शन विद मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स. थैंक यू स्टूडेंट्स.